Here we have question number 2.5 and the question says ki write Nernst equation and EMF of the following cell at 298 K, right? For the given reaction this and this. Okay. So first of all, what is Nernst equation? Nernst equation is basically to find the potential of the cell, real potential of the cell. Potential means takat of the cell, how powerful the cell is, right? So this is we find by Nernst equation, and EMF means the electromotive force, that is potential of the cell. And here particularly you have to first of all know the difference between E naught cell and E cell and the Nernst equation, what is it, then you will able to visualize that what is going on. So what is E naught cell? E naught cell is basically a standard EMF of the cell at a standard condition. That is the formula, you know, E cathode minus E anode, right? Standard reduction potential of cathode minus a standard reduction potential of anode, right? So this gives the a standard condition or a standard EMF, a standard electromotive force, a standard potential, right? But what E cell does is it gives the real electromotive force, because the EMF of the cell depends also on, as you have taken like the beaker and the electrode and the electrolyte, this also depends on the reaction. What is the reaction that is going to happen? What is the concentration of the electrolyte that you have taken, right? What is the temperature of this particular thing, electrolyte that you have taken, right? All these conditions are necessary to determine or influence the EMF of the cell, right? So that's why we calculate E cell, that is EMF of the cell under actual condition, by this formula, this Nernst equation. So we convert E cell by subtracting the parameters that are influencing that, and we get the actual EMF of the cell, right? So this is Nernst equation, and Nernst equation is used to convert E naught cell into E cell, right? Simple. And here you can see that this 0.0591 is a standard value. Actually this here we have written minus RT by NF log Q, right? But this is constant for a particular condition, that's why we have written 0.0591. This is 0.0591 is only possible at 298 Kelvin, right? Because temperature we have taken 298 Kelvin. Okay, so for ease the calculation we can take that. And log Q is reaction quotient. Reaction quotient is definitely, you know, you have studied in earlier classes that if the reaction is occurring AA plus BB gives CC plus DD, then what is reaction quotient? It is concentration of C in product side, concentration of C in the power of that coefficient, concentration of D in the power of that coefficient, by concentration of A and the power of that coefficient, by concentration of B at the power of that coefficient, right? Okay, so this is the thing, this is the theory that you have to remember and recall while solving this question. So now let's solve this question. So we have reaction given, Mg solid, Mg2 plus the concentration is given, and Cu2 plus the concentration is given, and Cu solid, right? So now let's write the half cell reaction. We have Mg solid gives Mg2 plus aqueous plus 2 electron. Okay, so it is giving 2 electron, that means oxidation is happening, and oxidation means anode, that particular thing is anode, and ox anode, एनोड पे ऑक्सीडेशन, राइट? अब उसके बाद क्या है कि आपका दूसरा सेल रिएक्शन क्या है, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स रिडक्शन इज अकरिंग टू रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, राइट? सो दिस इज द थिंग। अब आपका एक बार ये पता चल गया कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, तो आप यहाँ पर अब डायरेक्ट नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो। नर्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि ई नॉट सेल क्या है, व्हाट इज ई नॉट सेल पहला स्टेप में, और दूसरा Q वैल्यू, राइट? एंड तीसरा दैट N, राइट? तो N तो आपको पता चल गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ओवरऑल, तो N आपका 2 होगा। सिंपल। E सेल आपको फाइंड करना होगा। E सेल के लिए आपको क्या करना होगा, E कैथोड माइनस E एनोड, राइट? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड करना होगा, और आपको ये टेबल से मिल जाएगा, एनसीईआरटी टेबल। अगर ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम के क्वेश्चंस में, और उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा प्लस में 2.71 वोल्ट, तो ई नॉट सेल आपका 2.71 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में आया है, राइट? अब आपके पास क्यू चाहिए, आपको क्यू रिएक्शन कोसेंट। तो रिएक्शन कोसेंट आप कहाँ से फाइंड कर सकते हो,
रिएक्शन कोसेंट आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने फाइंड किया है इसे रिएक्शन कोसेंट। तो आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये रिएक्शन, आप देखो यहाँ पे जो हो रहा है, तो रिएक्शन में आपका क्या बनेगा, आपका इधर साइड Mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स Mg2 प्लस Cu, राइट। तो ये आपका रिएक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट साइड में आप देखो एक सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, और आपका एक Mg2 प्लस है, Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन हम यहाँ पे लिख देंगे और इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो आपका इसका पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.001 मोलर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप देखो इधर साइड, अब आप हम डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट साइड के कंसंट्रेशन को लिखेंगे। तो एक Mg है, सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन 1 होगा, तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो ऑब्वियसली 1 है, राइट। अब Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन हम लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर आपका Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर है, तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका यहाँ पर ये पुट हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 10 आ जाएगा इसका Q का वैल्यू, तो आपका Q का वैल्यू यहाँ पर 10 आ गया, राइट, सिंपल। अब आप देखो, अब आप यहाँ पर जैसे ही आपको ये Q और E नॉट सेल मिल गया, आप इसे नस्ट इक्वेशन में पुट करो, E नॉट सेल का वैल्यू, Q का वैल्यू एंड N का वैल्यू। आप फाइंड करोगे कि ई सेल जो है आपका, जो ईएमएफ है एट एक्चुअल कंडीशन, वो आपका आ जाएगा इतना सॉल्व करने पे, और उसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको 2.68 वोल्ट मिल जाएगा। दैट इज योर आंसर ऑफ ईएमएफ, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली लिखाता है RT/NF, एंड RT/NF क्योंकि यहाँ पर T आपका 298 केल्विन है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपका जो RT/F का वैल्यू हो जाता है वो 0.0591 हो जाता है, तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन को यूज करने के लिए वहां पे लिखा है, राइट, सिंपल। उसी तरह आप अलग जो दूसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा यहाँ पे इसका एक, क्योंकि मैंने यहाँ पे गैस यूज किया है तो यहाँ पे कैसे क्यू लिखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वही करना है हम लोग को। सबसे पहले आपको नस्ट इक्वेशन लिख लेना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको ई नॉट सेल पता होना चाहिए इसे कैलकुलेट करने के लिए, आपको क्यू पता होना चाहिए इसे कैलकुलेट करने के लिए, और आपको एन पता होना चाहिए इसे कैलकुलेट करने के लिए। RT/LF तो आपको 0.0591 है ही, क्योंकि टी का वैल्यू 2.98 आपने लिया है, राइट। तो अब आपको क्या है कि ई नॉट सेल पता करना है। आपको टेबल से पता चल जाएगा कि आप जो हाइड्रोजन यहाँ पे कैथोड लिए हो राइट साइड, उसका वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, और एनोड का वैल्यू माइनस में 0.44 होता है। इसे सॉल्व करने पे प्लस में 0.44 वोल्ट मिल जाएगा आपको। क्यों जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे आपका जो रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्शन आपका हो रहा है, तो आपका प्रोडक्ट साइड में Fe बनेगा, प्रोडक्ट साइड में Fe बनेगा, जैसे Fe आपका यहाँ पे बन जाएगा आपका Fe2 प्लस, एंड आपका यहाँ पे प्लस H जो आपका होगा 2H, वो बन जाएगा H2, राइट। ये गैस बनेगा, तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, ओके। ये आपका एक्वास हो जाएगा, ये आपका सॉलिड हो जाएगा, सिंपल। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी आपका सॉलिड हो जाएगा, एक्वास हो जाएगा, सॉरी। तो ये एक्वास हो गया, ये एक्वास हो गया, ये एक्वास हो गया, ये सॉलिड हो गया, और ये गैस हो गया। अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे क्यू? तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट साइड का लिखना होगा कंसंट्रेशन। Fe का तो कंसंट्रेशन होगा क्योंकि ये एक्वास में है, तो Fe का कंसंट्रेशन लिख लिया हमने। फिर गैसियस फेज का कंसंट्रेशन, गैस का कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, ये तो एक्वास में है नहीं, तो गैस का क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है इसलिए हम प्रेशर लिखते हैं उसका, राइट। अब आपका वहाँ पे देखो कुछ कॉफिशिएंट नहीं है तो पावर वन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप Fe सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है तो लिखने का जरूरत है नहीं, वो कैंसिल ही हो जाएगा। और उसके बाद H प्लस एक्वास है तो इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 1 मोलर, तो 1 मोलर आप लिख लो, 1 मोलर आप लिख लो, और उसका कॉफिशिएंट है स्क्वायर, तो स्क्वायर आप कर दो, सिंपल। अब आप यहाँ पे इसे सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 0.001, ये आपका क्यू का वैल्यू रिएक्शन कॉफिशिएंट, राइट। अब आप यहाँ पुट करो, ई नॉट सेल का वैल्यू आपको पता है, क्यू का वैल्यू आपको पता है, एन का वैल्यू आपको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, राइट। अब ये सॉल्व करो आप तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा ये जो है ई सेल मतलब आपका EMF एट एक्चुअल कंडीशन आपका 0.529 वोल्ट आएगा, राइट। उसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो तो थर्ड क्वेश्चन में आपका ये रिएक्शन हो रहा है, ये, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है,
गेन और लूज हो रहा है ना। आपका नस्ट इक्वेशन ये होता है, ई नॉट सेल ये होता है, क्यू वैल्यू ये होता है और एन का ये होता है, और इसका वैल्यू अगर 298 पे लिए तो 0.0591 हो जाएगा। ठीक है। अब ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो जीरो होता है, और आपका जो एस एन का होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो -0.14 होता है, तो आपका ये 0.14 वोल्ट आ जाएगा प्लस में। अब आप क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करो तो आपका देखो इधर साइड है एक्वास में, तो इसका कंसंट्रेशन होगा, हाइड्रोजन तो गैस है तो आपका इसको लेना पड़ेगा, आपको प्रेशर लेना पड़ेगा इसका, और सबका कॉफिशिएंट आपका 1 है, इसका कॉफिशिएंट 2 है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसका कंसंट्रेशन लिख दिया यहाँ पे, इसका कंसंट्रेशन लिख दिया, और फिर क्योंकि हाइड्रोजन तो आपका गैस है तो कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते तो हम लोग प्रेशर लिखते हैं, और पावर इसका 1 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे H प्लस का आप जब लो 0.02 आपका कंसंट्रेशन हो गया, और आप जब यहाँ पे एस एन का लोगे तो ये तो सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है तो हमने 1 ले लिया, और इसका पावर आपका देखो यहाँ पे ये जो पावर है आपका H प्लस का वो 2 है, तो आपका यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। राइट। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 125 के करीब। राइट। अब आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ये जो आपका ई नॉट सेल का वैल्यू आया था 0.14, और आपका जो क्यू का वैल्यू आया है 125, और एन का वैल्यू 2 आया है। इसे सॉल्व करने पे आपका ये वैल्यू आ जाएगा, और अल्टीमेटली आपका 0.078 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल। आपको यहाँ पे बस पता करना है कि ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। आप जब गैस ले रहे हो तो आपको यहाँ पे गैस का प्रेशर लेना होगा, और आपको यहाँ पे कॉफिशिएंट का पावर देना होगा, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। राइट। उसके बाद आपका ये आ गया फोर्थ रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका आप देखो देखते जाओ, पहले आपको लग रहा था कि ये बहुत लेंथी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपने सीख लिया स्टेप तो ये आपके लिए आसान हो गया है कि नहीं। तो आपको डायरेक्ट ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, जीरो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के लिए, और पॉजिटिव होता है आपका बी आर के लिए। अब यहाँ पे आपका -1.07 वोल्ट आ गया है। अब आपको यहाँ पे देखो तो एन आपको 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और लूज और गेन हो रहा है। राइट। अब क्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो प्योर लिक्विड है, आप देखो यहाँ पर Br2 लिक्विड है। राइट। तो लिक्विड जब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका लिक्विड ही है, तो उसके लिए तो कंसंट्रेशन आपका 1 होने वाला है। राइट। अब आपके पास ये मतलब ऐसा है क्या कि आपको जो है प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो Br2 जो है पूरा लिक्विड बन रहा है, और प्लस आपका H2 गैस बन रहा है। राइट। और इस साइड आप देखो तो Br माइनस है, और आपका 2H प्लस है। सिंपल। ये है आपका। तो प्रोडक्ट साइड आप देखो Br2 पूरी तरह लिक्विड है, वही लिक्विड है, तो ये इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन तो गैस है तो उसका प्रेशर हम लेंगे तो उसका प्रेशर भी 1 हो जाएगा, और उसका कॉफिशिएंट है नहीं तो 1 हो जाएगा इसका पावर। राइट। अब आप देखो कि ये Br2 ये 2Br बन रहा है, तो रिएक्शन बैलेंस के लिए यहाँ पे 2Br माइनस लेना होगा। ठीक है। अब ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, तो इसका आप जब कंसंट्रेशन लोगे तो आपको 0.03 मोलर लेना होगा, और इसका जो कॉफिशिएंट है 2 है तो पावर 2। अब यहाँ पे Br माइनस का जब आप लोगे तो इसका कंसंट्रेशन आपको लेना होगा 0.01 का स्क्वायर, और इसका आपका क्या है ये आपका जो कॉफिशिएंट है 2 है तो स्क्वायर लेना होगा, और कंसंट्रेशन 0.01। राइट। तो अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आपका 1.1 इंटू 10⁸ के करीब आएगा। उसके बाद इसको पुट कर देना है आपका ई नॉट सेल को, और फिर आपका क्यू वैल्यू को और एन को। ये सॉल्व करने पे आपका ये दो ई सेल आपका ये आ जाएगा एट रियल कंडीशन। राइट। सिंपल। तो ये आपका स्टेप होता है ई सेल कैलकुलेट करने का, जो कि बहुत आसान है। एक बार आपने कर लिया, या आपने 4 क्वेश्चन ऐसा कर लिया, इसमें अलग अलग केसेस थे, जब गैस हो तो आपको क्या क्यू लेना है, कैसे क्यू कैलकुलेट करना है, और आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता करना है टेबल देखकर। ये आपको ये सब कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, और धीरे धीरे आपने देखा कि ये बहुत सिंपल है और बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाता है। राइट। तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा। ओके।